ट्रेन का क्रॉस हो गया था, तो इसलिए हमारी ट्रेन रुक गई थी शादरा बाग रेलवे स्टेशन पे। तो ये जैसे वो असल डब्बा खराब हो गया, खराब हो गया, डब्बा कटिया गया, 9-10 डब्बे हाँ सीटा वाधू अज दोस्तों, इस वक्त मैं लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और ये जो ट्रेन सामने आपको नज़र आ रही है इसका नाम है बदर एक्सप्रेस। ये लाहौर से फैसलाबाद के लिए चलती है, मगर दोस्तों मैं इसमें बैठकर फैसलाबाद नहीं जा रहा। मैं इस वक्त जा रहा हूँ सांगला हिल शहर। What's your name, sir? Liang. Liang? Yeah. Where you from? Malaysia. Malaysia. And you want to explore Pakistan? Yeah, very. Yes. Where will you go? Northern areas? Yes. Gilgit-Baltistan. No, northern. Northern? In the mountain. How is Pakistan? Very funny. Funny? Funny. Funny? Yeah. Then People? funny. People are good? Yeah, good. They are very friendly? Yeah. Okay. That's a shooting. Okay, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you. बन गई? You take tea? Hello, sir. Take tea? No, thank you. No? Thank you. Okay. अभी देखते हैं कैसे अटैच करते हैं इंजन को ये। ये अटैच हो गया है इंजन, बस अभी चलने वाली है गाड़ी। भाई लेट हो गई है, 9:51 हो गए हैं, तो ये तकरीबन आधा घंटा लेट है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ, ਚੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਇਹ ਚੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਡੈਮੇਜ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੈਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਟੁਰੇਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਾ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਉਹੀ ਡੱਬਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਭੇ ਨਾ। ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੇ, ਆਓ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਐਂਜੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਹੋ ਹੋਵੇ ਗੱਡੀ ਲੇਟ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੀ ਹੋਣੀ, ਮੁਸਾਫਰ ਵਿਚਾਰਾ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਸਾਫਰ ਦਲੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ 8 ਘੰਟੇ। 8 ਘੰਟੇ ਲਾਹੌਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ? ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕੋ ਸ਼ਾਪ। ਲੋਕਲ ਸ਼ਾਪ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ? ਲੋਕੋ ਸ਼ਾਪ। ਲੋਕੋ ਸ਼ਾਪ ਉਹ ਮੁਗਲਪੁਰੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜਨ ਵਗੈਰਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਹੋ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਦਾ। ਲੋਕੋ ਇਹ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁਕੰਮਲ ਇਹਦੀ ਓਵਰਹਾਲਿੰਗ ਕਰੀਦੀ, ਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਡੱਬੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਨਵੇਂ ਡੱਬੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਧਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੈਰਨ ਫੈਕਟਰੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਓਵਰ ਜੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੈਰੀ ਸ਼ਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ ਕਹਿ ਲੋ। ਹਾਂ, ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ ਕਹਿ ਲੋ। ਆਹੋ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਾਰਟਸ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਮੁਕੰਮਲ ਡੱਬਾ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਜ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ? ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਅਗਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲਾਹੌਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਣ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਬਹਿ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਬਹਿਰੀ ਆਏਗੀ? ਬਹਿ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਸਵਾਰੀ ਬਹਿ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਡੱਬਾ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੱਬੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟੋਟਲੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਡੱਬੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਹੀ, ਇਹ ਲੋਕਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਕਮੋ ਪੇਜ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਪ ਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ 70-80 ਹੈ। 70-80 ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਪ ਡਾਊਨ ਦੀਆਂ, ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅਪ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅਪ ਹੈਗਾ ਨਾ? ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਪ ਹੈਗਾ। ਆਹੋ ਡਾਊਨ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨ ਇੱਧਰ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਿੰਡੀਆਂ ਵੀ ਆਣ ਡਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਡਾਊਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਡਾਊਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ।
ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਧਰੋਂ ਕਰਾਚੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਡੋਨ ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਡਾਉਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਜਾਂ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਸਭ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਸਭ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ 10 ਵਜ ਗਏ ਨੇ 10 ਵੀ ਆਓ ਲੇਟ ਪੂਰੀ ਅੱਜ ਆहो से हो गया चल पड़ी है ये गाड़ी लाहौर रेलवे स्टेशन से देखते हैं ये कितने बजे पहुंचती है सांगला हिल। इंजन के पीछे वाले डब्बे में सफ़र कर रहा हूँ मैं। दोस्तों बदर एक्सप्रेस 9:30 बजे लाहौर से चलती है। अगर लेट ना हो तो 12:25 पर फैसलाबाद पहुंच जाती है। इस ट्रेन के हवाले से एक मज़ेदार बात आपको बता दूं कि जब ये ट्रेन लाहौर से फैसलाबाद के लिए सुबह को चलती है तो इसका नाम बदर एक्सप्रेस होता है, मगर जब यही ट्रेन शाम को फैसलाबाद से लाहौर के लिए चलती है तो इसका नाम बदलकर गौरी एक्सप्रेस हो जाता है। दोस्तों ट्रेन का टिकट आपको लाहौर रेलवे स्टेशन के अलावा ट्रेन के अंदर से भी मिल जाएगा। इस ट्रेन में कोई भी सीट पक्की बुक नहीं होती है, जो शख्स जहां बैठ गया वो वहां बैठ गया और कोई भी माई का लाल उस वक्त तक आपको अपनी सीट से नहीं उठा सकता जब तक कि आप खुद अपनी सीट छोड़कर कहीं चले न जाएं। इसलिए अगर आप पानी लेने के लिए उतरते हैं या कोई और चीज़ लेने के लिए जाते हैं तो अपने साथ वाले बंदे को कह कर जाएं कि वो आपकी सीट की देखभाल करता रहे, वरना ये ना हो कि जब आप वापस आएं तो आपको अपनी सीट ना मिले वापस। और अपने सामान की हिफाजत खुद करें, दूसरों पर हरगिज़ भरोसा ना करें, क्योंकि ट्रेन में चोर और जेब कतरे भी सफ़र करते हैं। दोस्तों इस ट्रेन में सारे डब्बे एक जैसे जनरल क्लास के होते हैं, यानी कि इकॉनमी क्लास कह सकते हैं आप उसको, और कोई भी एसी वाला डब्बा नहीं होता है इसमें। इसलिए जो दोस्त ठंडी हवाओं के मज़े लेने के शौकीन हैं वो इसमें हरगिज़ सफ़र ना करें गर्मी के दौरान, उनको एसी वाला मज़ा इसमें आने वाला नहीं है। रावी आ गया? हाँ। किधर है रावी? अभी फाटक गए हैं बदामी बाग का। रावी आने वाला है। ये रावी आ गया। आ गया? लो जी रावी आ गया है जी। दोस्तों रावी दरिया का पुराना नाम एरावती था। दोस्तों किसी ज़माने में इस दरिया में बहरी जहाज़ भी चला करते थे। शायद आपको यकीन ना आए, मुझे भी नहीं आया था क्योंकि इसकी हालत ऐसी लगती तो नहीं है, मगर दोस्तों ये बात सच है। मुग़ल बादशाह अकबर के दौर में दरियाए रावी में बहरी जहाज़ चला करते थे और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से तिजारत होती थी। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सिंध तास मुआहदे के तहत दरियाए रावी पर इंडिया के हक़ को तस्लीम किया गया था। दोस्तों एक खुशी की खबर ये है कि इस दरिया को दोबारा खूबसूरत बनाने के लिए हुकूमत की तरफ से काम जारी है। दोस्तों सामने जो दीवार आपको नज़र आ रही है ये मकबराए नूरजहाँ के अहाते की दीवार है। अंग्रेज़ों के दौर से पहले मकबराए नूरजहाँ, मकबराए जहांगीर और मकबरा आसिफ खान एक ही अहाते के अंदर वाक़े थे। अंग्रेज़ों ने दरमियान में से
रेलवे लाइन गुजार दी जिस पर हम सफ़र कर रहे हैं, और यूं नूरजहां का मकबरा रेलवे लाइन के दूसरी तरफ चला गया। अंग्रेज़ तो मकबरा जहांगीर के पास लाहौर का रेलवे स्टेशन बनाना चाहते थे, मगर फिर किसी वजह से उन्होंने ये मंसूबा छोड़ दिया। तो ये है दोस्तों शादरा बाग रेलवे स्टेशन। इधर देखते हैं ट्रेन रुकती है या नहीं रुकती। बस नहीं पीछे घाट साहब को चले। अच्छा, मैं भी शायद कोई रास्ते जो उतरने लगे हो। नहीं रास्ते ये आ गया ये टिकट लिया ही नहीं लेना है। टिकट वाले भी आ गए हैं सभी। सांगला हिल 50 रुपये ज़्यादा। ये सर सांगला हिल। हिल भी है ना उधर, ये एक पहाड़ी है उधर की। और सर आप किधर जा रहे हैं? मैं भी सांगला ले जा हैं? सांगला ही जा अच्छा, सांगला हिल के। और अभी रास्ते में ये रेलवे ठीक कर रहे हैं ट्रैक को, उधर भी खड़ी होगी 2 मिनट। अच्छा, ट्रैक सही कर रहे हैं। उधर खड़ी होगी। ठीक है। टोटल कितने स्टॉप हैं ट्रेन के इसके? इसके हैं शेखपुर है, औरंगाबाद है, वाली के, सफदराबाद, सांगला और फैसलाबाद, जुमरा भी है। अच्छा, जुमरा भी। तो यानी 2-3 घंटे का सफ़र है। सांगला हिल का 2 घंटे का है। 2 घंटे का 12 बजे तक पहुंच जाएगी। 12 उधर देखने के लिए क्या है यार? उधर पहाड़ी है ना, बस एक ही है। नूर गार्डन है, उसके बाद पंजाब सोसाइटी है। पंजाब सोसाइटी। और वो जो पुराने मकानात थे हिंदुओं वो भी हैं। सिटी में कुछ घर ऐसे हैं, मंडी है ना, हाँ, सब्जी मंडी में है, उस तरह के घर पुराने हैं। पुराने हैं भी, बचे हुए हैं जी। उधर। यानी पार्टीशन से पहले हिंदू सिख रहते थे जी, वो सिखों दौर से बने हुए और कोई गुरुद्वारा कोई मंदिर है? नहीं, उधर ऐसा कोई खत्म हो गया? है ही नहीं। है ही नहीं। पहले तो होगा ना? पहले होगा, लेकिन हमें तो जहाँ तक हमने देखा वहाँ तक तो नहीं है। अच्छा, जब से आपने वही संभाली है कोई नजर नहीं आया? नहीं। रहते भी कोई नहीं, मुसलमान ही है टोटल? मुसलमान है, लेकिन जो सिख है ना वो 1-2 घर हैं तो सांगला हिल, बाकी हिंदुओं का नहीं पता है। हिंदू कोई नहीं है। हाँ, गुरुद्वारा भी होगा शायद। नहीं, गुरुद्वारा तो इधर नहीं, गुरुद्वारा तो ननकाना साहब में है ना। ननकाना साहब में? ननकाना साहब में उधर मंदिर भी है। हाँ, उधर तो है ननकाना साहब। अच्छा चलो, सांगला हिल ही जा रहा हूँ मैं, सैर करूँगा आज। फिर करते हैं, पहाड़ी पे जाएंगे। कितनी आबादी कितनी होगी सांगला हिल की? कोई आइडिया ही नहीं है। कोई नहीं पता। 6-7 लाख? हाँ, इससे ज़्यादा भी। इससे ज़्यादा भी हो सकती है यार। ये तो बड़ा पुराना है आपका शहर। ये सिकंदर आजम भी सुना इधर आया इधर आया हुआ है। आसार हैं। आसार। आसार किधर हैं वो? वो सांगला हिल पहाड़ी के पास ही हैं, उस तरफ ही। अच्छा, उस तरफ ही है। जी। यानी उसका विजिट ज़रूर करूँ मैं। ठीक है। वो भी ट्रांसपोर्ट क्या उधर से लूँ? चिंची बस जाती है? रिक्शा ही रहेगा, छोटा सा है, जो कौन सा ज़्यादा बड़ा। अच्छा, छोटा ही शहर है। मतलब कोई 15-20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। हाँ, 15-20 मिनट, 10 मिनट लगेंगे आपको स्टेशन से वो पहाड़ी पे जाते हुए। अच्छा, 10 मिनट? 10 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा रिक्शे पे। और रात शाम को कोई ट्रेन आती है? शाम को यही आती है, 4:20 पे आती है सांगला हिल। हैं? हाँ, इसी पे ही। सही है फिर तो यार। 4:20 पे इसी पे वापस। ये तो आपने ठीक ही बता दिया है। मैं ये सोच रहा था शायद बस में आना पड़ेगा। 4:20 पे ये आती है तो सांगला हिल। हाँ, फिर लाहौर आती है 6:20 पे, पहुंच जाती है। 6 बजे पहुँच जाती है। सही टाइम है यार, सैर करके बंदा आ सकता है। अभी आप लेट हो गए, इससे पहले भी एक ट्रेन जाती है। हैं? वो वो कौन सी? 1 घंटा 15-20 मिनट में गौरी? पहुंच जाती है। शालीमार। शालीमार? गौरी ये शाम को आती है, इसी का नाम गौरी है ना। ये बदर है सुबह टाइम, हाँ, शाम को गौरी है। शाम को गौरी है, सुबह बदर है। जी। यार ये क्या? ये तो रेलवे वालों को पता होगा ये ये क्या। तो- अच्छा दोस्तों, ये ट्रेन जो है इसके बारे में एक अजीब बात पता चली है कि ये सुबह को बदर एक्सप्रेस है शाम को गौरी। और शाम को गौरी है। वाह जी वाह, सही है ये भी यार तरीका। ये चल पड़ी है ये ट्रेन शादरा बाग रेलवे स्टेशन से। दोस्तों, ये कब्रिस्तान आ गया है शादरा बाग रेलवे स्टेशन के पास।
तहरीक लब्बैक पाकिस्तान लिखा हुआ है दीवार पर। दोस्तों, शाहदरा बाग लाहौर का एक मज़ाफ़ाती इलाका था, मगर अब लाहौर की हदूद में ही शामिल हो चुका है। लाहौर की हदूद बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब हर तरफ लाहौर ही लाहौर है। अंग्रेज़ दौर में शाहदरा बाग का रेलवे स्टेशन बनाया गया था। ये रेलवे स्टेशन लाहौर से कराची जाने वाली मेन रेलवे लाइन पर वाक़े है। मुग़ल दौर में शाहदरा में एक खूबसूरत बाग बनाया गया था। मकबरा जहांगीर, नूरजहां और आसिफ खान के मकबरे शाहदरा में ही मौजूद हैं। टूरिस्ट हजरात इन मकबरों को देखने के लिए आते हैं। शाहदरा से कुछ आगे फिर ट्रेन खड़ी हो गई है दोबारा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अब क्या मसला हो गया सर? काम हो रहा है उस्ताद जी क्यों खलो गई है? पुल बनना है ते। पुल बन रहा है? हाँ जी। केड़ा पुल हो? बरसाती नाला नहीं, भीड़ आंदे पेड़ नाला। हाँ। अच्छा जो उत्ते ਉਹਨਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, हाँ हाँ ਪਹਿਲੇ ਗਾਰਡਰ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਹੋਵੇ हाँ हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ अच्छा 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 वो फिर ਕਾਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਕਾਸ਼ਨ। शासन लगा है। ਹਾਂਜੀ। ये फिर थोड़ी देर बाद खुलेगी। ਨਹੀਂ ਬਸ ਸੈਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪਈ। अच्छा सैन करके। ਹਾਂਜੀ। ये रेलवे के मुलाजिम काम कर रहे हैं जी दिन रात, तो रेलवे का पहिया चल रहा है। दोस्तों, ये है भेड़ नाला। यहाँ पर तरक्याती काम जारी है। सुना है कि इस नाले पर एक पुल बनाया जा रहा है। यहाँ पर ट्रेन की रफ्तार स्लो रहेगी। दोस्तों, इस नाले में आम तौर पर सेवरेज और कारखानों से निकलने वाला पानी डाला जाता है। इसके अलावा बरसात के दिनों में बारिशों का पानी भी इसमें आ जाता है, जिसकी वजह से ये नाला काफ़ी भर जाता है। पागल हो गया ट्रेन। दोस्तों, ये एक और रेलवे स्टेशन आया है, मिशन कॉलर। ये पटड़ी भी चेंज कर लिया ट्रेन ने। मिशन कॉलर के रेलवे स्टेशन से कुछ फासले पर ट्रेन फिर रुक गई है। चल पड़ी है ये ट्रेन हमारी दोबारा। दोस्तों, किला सत्तार शाह के रेलवे स्टेशन से अब हमारी रेल गुज़र रही है। ये इलाका लाहौर से इतनी ज़्यादा दूर नहीं है। दोस्तों, जिस तरह लाहौर की हदूद फैलती जा रही हैं और आबादी का जंगल ज़रई ज़मीनों को निगल रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि एक दिन ये इलाका भी लाहौर की हदूद में ही शामिल होगा और शहर बन जाएगा। दोस्तों, चीचू की मलिया रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन अब गुज़र रही है। यहाँ पर 13,7800 किलोवाट का एक बिजली घर मौजूद है। इस इलाके में बहुत सी फैक्ट्रियाँ भी वाक़े हैं। दोस्तों, चीचू की मलिया के लोग किसी ज़माने में बेवकूफ़ी की हद तक सादा थे, इसलिए दूसरे इलाकों के लोगों ने उनके हवाले से लतीफ़े बना रखे हैं, मगर अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ के लोग बहुत चालाक हो गए हैं, उनको आसानी से बेवकूफ़ भी नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों, शेखुपुरा का रेलवे स्टेशन आने वाला है।
ये ट्रेन फिर रुक गई है रेलवे फाटक के पास। आगे कोई मसला हो गया है, कोई गड्डी तो नहीं आ रही? नहीं गड्डी आ रही होती है ते आई को लैन ते आनी। हाँ ये भी गल है, कोई और ही रोला है? नहीं बस 2 रुपये गड्डी। 2 रुपये है जी गड्डी, स्टेशन से पहले खड़ी हुई थी, अब चल पड़ी है। लेट होने के बाद बड़ी स्पीड पकड़ ली है इसने, तूफान मेल बन गई है। क्यों जी? ये रेलवे फाटक है स्टेशन से पहले शेखुपुरा का। ये चल रही है। ये दोस्तों शेखुपुरा रेलवे स्टेशन आ गया है। जिस जगह पर शेखुपुरा शहर मौजूद है, इस जगह पर कुछ लोगों के मुताबिक एक बस्ती ज़माना कदीम से ही आबाद थी, जिसको पंजनगर कहते थे। ये बस्ती तकरीबन 30,000 बीघे पर फैली हुई थी। उस बस्ती में एक कला भी बना हुआ था, जहाँ पर बाकायदा फौज रहा करती थी। मुग़ल बादशाह जहांगीर ने पंजनगर को जहांगीरपुर का नाम दिया था। जहांगीर का निकनेम या प्यार से बुलाए जाने वाला नाम शेखू था, जिसकी वजह से जहांगीरपुर को बाद में लोगों ने शेखुपुरा कहना शुरू कर दिया। दोस्तों, कुछ लोगों के मुताबिक ये वाली रिवायत सही नहीं है। ऐसे लोग एक दूसरी रिवायत सुनाते हैं। उनके मुताबिक शेखुपुरा शहर ज़माना कदीम से आबाद था और इसका नाम विरकगढ़ था। शेखुपुरा एक ज़रई शहर है और इसके अलावा यहाँ पर कारखाने भी काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। हिरन मीनार और कला शेखुपुरा यहाँ पर मुग़ल दौर की यादगारें हैं। इसके अलावा कुछ बाज़ार ऐसे हैं जिनका नाम मुग़ल बादशाहों के नाम पर रखा गया है, जैसा कि हुमायूं बाज़ार, जहांगीर बाज़ार, अकबर बाज़ार और बाबर बाज़ार। शेखुपुरा और लाहौर 2 जुड़वां शहर हैं। अब तो आबादी लाहौर की शेखुपुरा तक जा पहुंची है। दोस्तों ट्रेन स्लो हुई है, लगता है कोई स्टेशन आया है। देखते हैं कि कौन सा रेलवे स्टेशन आया है। दोस्तों ये है फरुखाबाद रेलवे स्टेशन। और सर जी ठीक ठाक हो? ये क्यों खलो गई है ट्रेन? कराकरम दा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये फिर वो आएगी तो तुरेगी फिर? ठीक है। 10 मिनट 15 मिनट लग सकते हैं। ठीक है। तो खान पीन की कोई चीज़ नहीं हैगी इतने नाल? सही है, लेकिन इन्नी देरी तो ट्रेन टूट जानी है फिर। देखो जी अपनी तबीयत ना जाना ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਨਾ। हाँ ये तो गल ਤੁਹਾਡੀ ठीक है जी। ये है जी टिकट घर, ये टाइम टेबल लिखा हुआ है ट्रेनों का। ये बदर एक्सप्रेस और गौरी एक्सप्रेस इधर से गुजरती हैं। ट्रेन रुकती है सर इधर कोई? ये यही रुकी है, देखो बस यही है मेरे, और तो रुकी नहीं, वो नॉन स्टॉप थी बाकी। वो निकल गई। इसका तो ये वो है ना, क्या कहते हैं इसको, क्रॉस आ गया है। नहीं ये तो रुकती है, ये रुकती है? हाँ ये तो रुकती है। अच्छा और कोई नहीं वो रुकती? आगे नहीं और नहीं रुकती, एक ही मुझे लगता है रुकती है। शालीमार
ये कौन सी गई है अभी, उससे पहले कहने नहीं रुकी। वो नहीं रुकी, हाँ, वो non-stop। शालीमार थी। वो मेरा कराची जाना होता होगा उसने। हाँ वो कराची जाती है। का हो गया। बस ये जो लोकल होती है इस तरह हाँ, ये की, रुकती है। ये रुक जाती पहले है। वो रुकती थी, बस ये इन्होंने स्टॉप खत्म कर दिया। अच्छा ख़त्म कर दिया है। हाँ ये तो बहुत, ये इधर स्टेशन के नाम भी लिखे हुए हैं। किला शेखुपुरा, लाहौर, बहाल के, सफदराबाद, मोमिन, सांगला हिल, दारुल एहसान, साहिवाला, चक झुमरा, फैसलाबाद, गुजरा। इसी तरह ये तोबा टेक सिंह, शोरकोट, अब्दुल हकीम, खानेवाल, मुल्तान, बुर्ज, चनियोट, चनाब नगर, नश्तराबाद, शाहीनाबाद, सरगोदा। इधर नोटिस भी लिखा हुआ है कि 3 साल से 10 साल तक के बच्चे का आधा टिकट खरीदें और टिकट वापस करने पर 10 रुपये काटे जाएंगे। ये बहुत पुराना लिखा हुआ लगता है, अब तो बहुत महंगे टिकट हो गए हैं। ये फरुखाबाद रेलवे स्टेशन का बाहर से व्यू है। तो मैं खाने पीने कहीं नहीं जा सकता, किसी भी टाइम पे ट्रेन चल पड़ेगी, तो इसलिए अभी इधर खड़े हुए हैं, देखते हैं। छोटा सा रेलवे स्टेशन है ये, क्या बनता है, कितनी देर में ट्रेन चलती है कोई पता नहीं। पुरली साइड पे देखते हैं, कराक्रम आने वाली है। और जी अस्सलाम वालेकुम, ये फरुखाबाद ही रहंदे हो जी। ठीक है। कितना बड़ा हैगा ये शहर? शहर काफ़ी है जी, काफ़ी आबादी हैगी है, मतलब कोई 7-8 लाख या ज़्यादा ही है? इस तो ज़्यादा ही है। ज़्यादा ही हैगी, ठीक। ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਵਗੈਰਾ? ਹਾਂ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਫਰੂਕਾਬਾਦ ਅੱਛਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਜੀ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਨਕਾਣੇ ਆ ਜੀ, ਨਨਕਾਣੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਉਹ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ? ਜੀ, ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਮਕਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਾਈਏ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੈ ਨੇ ਕਾਫੀ, ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਜੀ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? फैसलाबाद? ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜੁਗਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ फैसलाबाद बड़े मशहूर ने बंदे जुगता लाने जाए। तो ट्रेन आ गई है, कराक्रम एक्सप्रेस बड़ी स्पीडों में आ रही है दोस्तों। वे साइड से लगना क्या जगह कर गई है, बड़ी स्पीड में गई है। फरुखाबाद का पुराना नाम चूहड़ काना था। इस इलाके को किसने बसाया, इस हवाले से लोग किसी एक बात पर मुत्तफिक नज़र नहीं आते हैं, उनमें इख्तलाफ राय पाया जाता है। एक रिवायत के मुताबिक इसको विरक जट कौम के एक ज़मींदार ने बसाया था, उसका नाम चूहड़ था। ये 500 साल पुरानी बात है। चूहड़ की एक आँख खराब थी और वो सिर्फ एक आँख से देख सकता था। इस वजह से लोगों ने उसे चूहड़ काना कहना शुरू कर दिया था और यूं ये इलाका चूहड़ काना के नाम से मशहूर हो गया। और दूसरी रिवायत के मुताबिक जातर सिंह नामी एक शख्स के यहाँ औलाद नहीं होती थी। उसने एक सूफ़ी बुज़ुर्ग मियाँ अली से इस सिलसिले में दुआ की दरख्वास्त की। चुनाचे मियाँ अली की दुआ की वजह से जातर सिंह के यहाँ 4 लड़के पैदा हुए, जिनमें से बड़े लड़के का नाम उसने चूहड़ रखा था और उसी के नाम पर बस्ती का नाम भी चूहड़ आना रखा गया था, जो कि बाद में बिगड़ कर चूहड़ काना हो गया। 1982 में इस शहर का नाम बदलकर फारुखाबाद रख दिया गया। ये शहर
एक दफ़ा अफ़गानों और दूसरी मर्तबा अंग्रेज़ों के दौर में तबाह बर्बाद हुआ। 1919 में जब इंडिया में जलियांवाला बाग का वाक़या हुआ था, तब यहाँ के लोगों ने अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज किया था। उस वक्त लोगों ने रेलवे स्टेशन को आग लगा दी थी और पटरियों को भी उखाड़ डाला था। अंग्रेज़ों ने बदला लेने के लिए मुजाहिरीन पर फायरिंग कर दी थी, जिसकी वजह से बहुत से लोग मारे गए थे। 1986 में डॉक्टर रशीद चौधरी ने दिमागी अमराज के इलाज के लिए यहाँ पर एक हस्पताल फाउंटेन हाउस बनाया था। दोस्तों, सिख मज़हब के लोगों के लिए फ़र्रुखाबाद की एक ख़ास अहमियत है। सिखों के लिए ये एक मुक़द्दस जगह है, क्योंकि यहाँ पर उनका मशहूर गुरुद्वारा सच्चा सौदा मौजूद है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से सिख हजरात यहाँ पर आते रहते हैं। दोस्तों, ट्रेन फिर स्लो हो रही है। लगता है कि कोई रेलवे स्टेशन आने वाला है। मेरे ख़याल में ये बहालिके का रेलवे स्टेशन होगा, जो कि फ़र्रुखाबाद का एक गांव है। गांव के रेलवे स्टेशन की अपनी खूबसूरती होती है। उसके इर्द गिर्द खेत खलियान होते हैं, हरियाली होती है, जिसको देखने से हमारी आँखों को ठंडक मिलती है। मुझे लग रहा है यहाँ पे स्टॉप करेगी ट्रेन और रुक गई है। दोस्तों, बहालिके गांव के रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म दूसरी तरफ है। दोस्तों, बहालिके रेलवे स्टेशन से अब ये ट्रेन चल पड़ी है। अब मेरी मंजिल आने ही वाली है। सांगला हिल रेलवे स्टेशन पर मैं उतर जाऊंगा। आज मेरा प्रोग्राम है कि मैं सांगला हिल की वो मशहूर पहाड़ी देखूंगा, जिसकी वजह से सांगला हिल शहर को सांगला हिल कहा जाता है। दोस्तों, सफदराबाद का रेलवे स्टेशन आने वाला है। इस कस्बे का पुराना नाम मंडी ढाबा सिंह था। इस कस्बे को एक सिख ज़मींदार ढाब सिंह ने बसाया था। ये कस्बा ख़ानदानी दुश्मनियों की वजह से काफ़ी मशहूर रहा है। MPA मोहम्मद सफदर डोगर के नाम पर इस इलाके का नाम मंडी ढाबा सिंह से बदलकर सफदराबाद रखा गया था। दोस्तों, अंग्रेज़ दौर में यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई गई और रेलवे स्टेशन बना। तिजारत में तरक्की हुई और एक गला मंडी भी बनाई गई थी। नहर रख ब्रांच सफदराबाद में वाक़ है। ये नहर सांगला हिल शहर की तरफ जाती है। पार्टीशन से पहले यहाँ पर काफ़ी तादाद में हिंदू और सिख भी आबाद थे। गंदम, गन्ना और चावल यहाँ पर उगाई जाने वाली अहम फसलें हैं। आपने इधर उतरना है? फैसलाबाद जा रहे हैं यार। फैसलाबाद तो आखिरी स्टॉप है। जुगते बड़ी लगाते हैं उधर के लोग, क्या वजह है? आदर जवाब होते हैं। ठीक है, लो ये सफदराबाद आ गया। इसके बाद कौन सा है? सांगला। और सांगला उतर जाना है मैंने। सांगला जाना आपने? हाँ यार, सांगला जा रहा हूँ। तो ये भाई जा रहे हैं। नाम क्या है आपका? वकास, मोहम्मद वकास साहब जो हैं फैसलाबाद जा रहे हैं। लाहौर से बैठे हो? ये फ़र्रुखाबाद से। अच्छा, फ़र्रुखाबाद से। ये भी भाई सफदराबाद के हैं। ठीक है, तो आया मज़ा फिर ट्रेन में सफ़र का? बहुत अच्छा सफ़र है। अच्छा सफ़र रहा है। ये जब लेट हुई है ना ट्रेन, तो इसने स्पीड पकड़ ली है। 1 घंटा लेट हुई। हाँ, फिर इसने नहीं पीछे देखा, वरना इतनी होती नहीं इसकी स्पीड। नहीं, बहुत लेट होने के बाद हुआ। तो आप इसी में सफ़र करते हो फैसलाबाद? जी, मैं पहली दफ़ा जा रहा हूँ। पहली दफ़ा इसमें? अच्छा। तो फैसलाबाद में कौन कौन सी चीज़ें हैं देखने के लिए टूरिस्ट? मैं तो कपड़ा लेने के लिए जा रहा हूँ। इधर कपड़ा सस्ता है, ज़रा अच्छा मिल जाता है क्वालिटी में। इधर ये जो घंटा घर जो है उसके पास ही मिलता है या
दूर। हाँ घंटा घर के पास ही है। घंटे इधर सुना है 8-10 बाजार हैं कोई, हाँ बहुत बहुत पुराने हैं। तो फर्रुखाबाद आपका कितना बड़ा शहर है? ठीक ठाक शहर है। ठीक ठाक। ये तहसील है या कैसे कस्बा है? नहीं तहसील नहीं है, कस्बा है। तो मतलब इसकी भी 8-10 लाख आबादी होगी। ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी। अच्छा इससे भी ज़्यादा है। ठीक है। फर्रुखाबाद में और क्या क्या है देखने के लिए, बता सकते हो कुछ? फर्रुखाबाद का पानी है नहर वाला, बस पीने वाला, वो बहुत अच्छा नस्ले से भी अच्छा पानी है। हैं? मशहूर है। मशहूर पानी। वही नहर है जो बड़ी नहर है शेखपुरे से आती है, 2 नहरें। खूनी नहर, वो बहुत बड़ी है। वो चनाब का पानी है। जनाब की आती है। चनाब से आती है यार, वो पानी उन्हीं का ही है। अच्छा उसका पानी बड़ा अच्छा बहुत है। अच्छा है। मैंने वो पीने पिया वाले है। नलके बहुत लगे हैं, हाँ। पानी बहुत। मैं नलके का मैंने पिया है उधर ना, नलके का पानी बड़ा ठंडा था, गर्मी में गया ठंडा था। होता है। और ये कुछ हिंदू सिखों के गुरुद्वारे भी हैं इधर। वो सच्चा सौदा है, सच्चा फर्रुखाबाद के साथ ही है। फर्रुखाबाद के साथ ही। और हिंदुओं के मकान भी हैं पुराने, सिखों हाँ, के पुराने दुकान। वो भी हैं। और बाकी तो वही चीज़ें होंगी जो हाँ, वो- आम है, हाँ। फसलें वगैरह ये वो। ये तो बात है। मौसम भी ऐसा ही है। मौसम। कोई खास तो नहीं है, क्योंकि लाहौर से इतने फासले पे नहीं है, हाँ। थोड़े के फासले पे है। अस्पताल है, सरकारी हॉस्पिटल है, छोटा है, बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है। और कॉलेज लड़कियों का, लड़कों का स्कूल है, कॉलेज नहीं है। कॉलेज नहीं है। शेखोपुरा जाते हैं लोग। ठीक है। स्कूल तो काफ़ी होंगे। स्कूल तो क्या- और क्या नाम है इसका? वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट। नहीं वो नहीं है, वो आपको वही नहरों वाला पानी चलता है। नहरों वाले? लोग रक्षों में लेके जाते बेचते हैं 20-30 रुपए के कैन। अच्छा वही पीते हैं, वैसा प्लांट नहीं जैसे लाहौर में लगे हुए हैं। ठीक है। वो पीने का अच्छा है पानी यानी कि। ठीक है, बेहतरीन है। वो भी सही है यार, अच्छा पानी है, फ्रेश है। ये लाहौर में तो ऐसा मिलता नहीं ना, और सारा पानी आलूदा है। अच्छा उधर स्मोक है, इधर कम है स्मोक, लाहौर में स्मोक ज़्यादा है। अब आएगा सांगला। बांग्ला है। सांगला है। अच्छा यार बड़ी मेहरबानी आपकी, खुशी हुई आपसे मिलकर। तो दोस्तों सांगला हिल से ट्रेन ये निकल गई है, बदर एक्सप्रेस। तो मैं इधर उतर गया हूँ सांगला हिल, क्योंकि मैंने आज पहाड़ी देखनी थी सांगला हिल की। तो मैं अब चलता हूँ स्टेशन से बाहर जाके देखता हूँ क्या हालात हैं।